This is the only video you need, Jay Springs. We are gonna make the biggest academic comeback. I just want to ask you one real question. You also wasted 11. Nothing is more common than the unsuccessful persons with talent. Do you get blamed? The most omnipotent thing, 1 week challenges. In these 1 week challenges, we will have 7 18 hours study challenge, 1 24 hours study challenge, IOC का challenge. Because you also know कि IOC कितनी important है 12. That 7th day is 24 500 questions challenge from each subject, physics, maths, IOC, PC and IOC. मेरी स्लीप साइकिल अभी बहुत बिगड़ी पड़ी है. मैं अभी ऐसे सोता हूँ लाइक जब तक मेरी बॉडी पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती. वी विल बी कवरिंग होल IOC, दैट इज पीरियोडिक टेबल, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, केमिकल बॉन्डिंग एंड कंप्लीट GOC. मैं अपने रिसोर्स बताता हूँ कि मैं कहाँ से करने वाला हूँ, उसके हिसाब से ये सारे रखे गए. अगेन बीच केमिस्ट बाई मोहित रियान सर, उसमें एक कंप्लीट GOC की प्ले लिस्ट बनी हुई है. आई विल बी डूइंग फ्रॉम दैट चैनल. 3 डेज में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिवाइड किया है कि 3 डेज में एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है. जैसा कि तुम लोग को पता है इस चैलेंज को मैं भी करने वाला हूँ. आई ट्राई टू मेक वीडियोस अलॉन्ग विद दिस चैलेंज. इट डजंट मैटर व्हेन यू स्टार्ट, द थिंग विच मैटर्स द मोस्ट इज दैट व्हेन यू आर गोना कंप्लीट इट. चैनल नया है तो इस वीडियो की इतनी रीच नहीं जाएगी कि अभी सारे लोगों के पास पहुंचे. इवन इफ यू आर स्टार्टिंग लेट ना, बिलीव मी कि अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इतने बार फेल हो जाएंगे कि वो तुम्हारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स क्रिएट एन एग्जाम्पल फॉर दोज पीपल हु विल सर्च ऑन यूट्यूब नेक्स्ट ईयर. Just we need is that persistence, determination and discipline. So to all the peoples who clicked on this video, I just want to convey you one thing. As the thumbnail says, this is the only video you need, Jay Springs, because at the end of this video, you will have a strong picture in your mind that how you will get rid of those backlogs and turn that failed attempts, unimpactful attempts into an impactful attempts, and especially those who wasted 11. Believe me, you are gonna make the biggest academic comeback of yourself after watching this video. So let's start. राधे राधे सभी प्राणियों. For those who doesn't know me, this is Arvionics and I welcomes you to the channel. देखो बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगा और बहुत जेन्युइन नोट पे बात करूँगा. I already know that you explored many videos. Is it still possible to crack IIT? Is it still possible to cover whole day syllabus in 1 year? वो सारे उटपटांग बातों के बारे में नहीं बात करेंगे. Because you also know कि अगर तुम वो 2 महीने की भी स्ट्रैटेजी सर्च करो, you will get that. And to get that dopamine hit, you can search any time in future. But अभी I just want to ask you one real question, that is there any option for you? And if you think that you can get rid of this situation just by stepping out of it, believe me, you will just get blamed कि तू ये नहीं कर सकता था, that's why you stepped out. Practically बात करें तो you also know that our mind is capable of learning and understanding infinite things. Just we need is that a proper follow-up, a proper plan, a proper challenges. वही लेकर आया हूँ. If you don't know me, I will refer you to watch the channel's first video after this video, because you also get to know me through that video. And purpose of this channel, आगे आने वाली videos भी ऐसे ही sequential होंगी. So if you follow on the sequence, it will get an ease for you. अभी बात करते हैं. For those who watched that video, you know that I also wasted 11. अभी ये सारे रीजंस के बारे में नहीं बात करूँगा कि क्यों किया, कैसे हुआ. ये सारे रीजंस मैं तब बताऊँगा जब मैं ये चैलेंज कंप्लीट करूँगा. बिकॉज यू ऑल्सो नो कि अगर वो रीज़न, वो सिचुएशन के बारे में अगर तुम वो निकलने से पहले बताते हो किसी को, इट विल टर्म्ड एज एक्सक्यूज. बट इफ़ यू say that reason after escaping out of that situation, it will termed as real truth. So I just want to say that truth after I complete that challenge. क्या है, क्यों है, सब लेकर आया हूँ. क्या चैलेंज करने वाले हैं, क्या आने वाले वीक्स में होगा. Because you know what, nothing is more common than the unsuccessful persons with talent. And I just tell you one thing, don't fall on this common trap कि तुम नहीं कर पाए even if you have talent. I just want to ask you one thing, that do you get blamed like that?
and try to make this challenge a cakewalk for you. And do you know what the most omnipotent thing for the challenge? And whatever in your life, even if you start new startup, even if you follow a new challenge, believe me, the most omnipotent thing for completing a challenge, for starting a startup, is persistence, determination and discipline. हम यही तीनों को लेकर आगे आने वाले 4 वीक्स कवर अप करने वाले हैं. 4 वीक्स का चैलेंज हम कवर अप करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट्स वी आर गोना हैव इन द 4-week challenge. We are gonna have 4 weeks for the challenge, in which we will have 3 1-week challenges. In these 1-week challenges, we will have 7 18 hours study challenge. This means that हम लोग 7 दिन 18 hours study challenge करने वाले हैं. And 1 24 hours study challenge. I don't know how to do it. I am even skeptical about it, but we are gonna try this. And rest 1 week, we will be covering 2800 plus questions, just because we are gonna have 3 500 questions in a day challenge. ये सारे challenge हम लोग 4 weeks में cover करने वाले हैं. If you will follow on this path, believe me, you will get rid of this situation. You will get rid of your backlogs. और जिनकी 11th wasted है like me, हम लोग बहुत जल्दी एक proper path पे होंगे and will conquer this JEE journey. उससे पहले एक important चीज़ बता देता हूँ कि you will see a banner, YouTube channels banner on this channel, जिसमें अभी chance of IIT is 10%. ये धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये बढ़ेगा या फिर घटेगा. आगे आने वाले चैलेंजेस डिसाइड करेंगे कि ये कैसे चलने वाला है. इससे तुम लोग अपने साइड से भी अपना रख सकते हो कि कैसे तुम अपना डिसाइड कर रहे हो. इफ़ यू विल फॉलो ऑन द सिचुएशन, इफ़ यू विल फॉलो ऑन द चैलेंजेस, यू कैन गिव 1% टू दिस बैनर. ये बैनर मैं ट्राई करूँगा कि हर चैलेंजेस के बाद, हर 4 वीक्स जैसे ये चैलेंज हुआ, अगर ये कंप्लीट होता है, बिलीव मी, मैं इसमें 5% ऐड करने वाला हूँ. बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर मैं ये कंप्लीट करता हूँ, बिलीव मी, आई विल बी एट द बेस्ट सिचुएशन इन दिस JEE जर्नी. और वो जो बात किया था कि एकेडमिक कमबैक के बारे में, दिस 4 वीक्स आर गोना डिसाइड दैट एकेडमिक कमबैक. 4 वीक्स ये रहे. थर्सडे से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 22nd to 18th of June. These 4 weeks will decide our JEE journey. क्या होने वाला है, लेट्स टॉक अबाउट इट. फर्स्ट वीक चैलेंज विल स्टार्ट फ्रॉम 22nd of May to 28th of May. और ये सारे 7 days यू कैन सी कि सारे पे मार्क किया हुआ है कि नॉर्मल डे है, कि 18 आवर्स चैलेंज है, कि रिवाइज डे. नॉर्मल डे मतलब 10 to 14 hours of study in a day. 18 hours challenge means 18 hours a day, and revise day means whatever we have studied in 6 days, we are going to revise in that last day of the week. First day is normal day, as you can see. Second day is also normal day. Third day is our first 18 hours study challenge. Fourth day is another normal day. Fifth day also normal day. Sixth day is 18 hours study challenge, and at the last 7th day will be revising. Let's see how we will use that rest 1 week. We are going to have 2 days out of that 7 as 29th May and 30th May. 29th May को होगा 500 क्वेश्चंस का IOC का चैलेंज. बिकॉज यू ऑल्सो नो कि IOC कितनी इंपॉर्टेंट है 12th इस सिलेबस को कवर करने के लिए. और इसके साथ साथ वी विल ऑल्सो बी कवरिंग 100 स्ट्रक्चर्स चैलेंज, जिसमें वी विल बी मेकिंग 100 स्ट्रक्चर्स इन अ डे. 500 क्वेश्चंस अलग है, वो भी इसी के साथ है, और 100 स्ट्रक्चर्स भी इसी के साथ है. सो इससे IOC की 11th की IOC की बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाएगी. केमिकल बॉन्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगा इससे 100 स्ट्रक्चर से. यू विल बी कवरिंग होल स्ट्रक्चर्स पार्ट, होल केमिकल बॉन्डिंग और होल IOC आई वुड से. 30th of May को क्या होने वाला है, 2 1-shots ऑफ मैथ एंड 1 shot ऑफ फिजिक्स. ये तुम्हें आगे समझ में आएगा कि ये मैं क्यों रखा हूँ. बिकॉज 1 week का मैं चैप्टर सीक्वेंस भी लेके आया हूँ, दैट हाउ वी विल बी कवरिंग द होल चैप्टर्स ऑफ 11th and along 12th. So let's move on to the second week challenge. Second week challenge will start from 31st of May to 6th of June. On the very first day, we will be doing 18 hours study challenge. Second day को अपना normal day होगा. Fourth को
थर्ड को अगेन फोर्थ 18 आवर्स स्टडी चैलेंज. फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डे विल बी नॉर्मल डे, एंड ऑन द सेवेंथ डे यू विल बी सीइंग कि इतने लगातार कंसेक्यूटिव नॉर्मल डेज आए हैं. जस्ट बिकॉज दैट सेवेंथ डे इज 24 आवर्स स्टडी चैलेंज. वी विल बी डूइंग 24 आवर्स स्टडी चैलेंज. इसकी वीडियोस अलग आएंगी, सो यू विल गेट टू नो हाउ वी आर गोना डू इट. अगेन रेस्ट 1 week. We are taking out 2 days out of that 7 as 7th June and 8th June. 7th June को we will be doing 500 questions challenge from each subject: physics, maths, IOC, PC and IOC and OC. And on the 8th June we will be doing complete stereoisomerism challenge, in which we will be covering complete stereoisomerism theory along with I think question practice also, but a decent level question practice. ये क्यों कर रहे हैं? कॉज रिएक्शन मैकेनिज्म जो 12th में स्टार्ट होती है उसमें ये पार्ट लगता है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में 12th में ये स्टार्ट होता है. सो इससे हमारा 12th ओसी का स्टार्ट हो जाएगा. आईओसी हम लोग सेकेंड वीक में स्टार्ट कर चुके हैं बिकॉज वी हैव कवर्ड होल आईओसी ऑफ 11th इन फर्स्ट वीक. पीसी के बारे में भी धीरे धीरे आगे पता चलते जाएगा कि मैंने कैसे प्लान किया. फिजिक्स और मैथ बिलीव मी वो ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है कि तुम फर्स्ट 2 weeks में होल कवर कर लो. इसलिए आई हैव अ प्लान कि वी विल बी कवरिंग होल मैकेनिक्स एंड होल अलजेब्रा फ्रॉम मैथ्स 11th, क्योंकि अलजेब्रा पार्ट और मैकेनिक्स पार्ट तुम्हारे 12th और फिजिक्स मैथ्स दोनों में लगते हैं. सो वी विल बी कवरिंग होल मैकेनिक्स एंड अलजेब्रा पार्ट in these 4 weeks actually. Now let's move on the second week challenge. Not second week actually, third week challenge. That is from 9th June to 15th June. इसमें तुम्हें पता चलेगा कि फर्स्ट डे इज नॉर्मल डे, सेकेंड इज आवर फिफ्थ 18 आवर्स चैलेंज, थर्ड डे इज नॉर्मल डे, फोर्थ डे इज अगेन सिक्स्थ 18 आवर्स चैलेंज, फिफ्थ डे इज नॉर्मल डे एंड सिक्स्थ डे is again going to be our 7th 18 hours study challenge. On the last 7th day we will be doing 500 questions challenge from 11th class. इसमें तुम्हारी I think मैं ये प्लान जैसे किया है, we will be covering a major chunk of the 11th syllabus. That's why we will be doing 500 questions challenge from 11th class. Now let's move on that rest 1 week जिसमें अभी तुम्हारे पास 3 days बचे हैं. So the rest 3 days will be 16th June, 17th June and at the last of this 4-week challenge, that is 18th June. On the 16th June we will be doing 300 questions challenge from 12th maths. On 17th June we will be doing 300 questions challenge from 12th physics. And on the 18th June we will be doing 450 questions, that is 150 from each PC, IOC and OC. क्वेश्चंस चैलेंज फ्रॉम 12th केमिस्ट्री. सो यहाँ से एक चीज़ बता दूँ कि वी हैव कवर्ड एटलीस्ट अ मेजर चंक ऑफ द 11th सिलेबस एंड ऑल्सो सम पार्ट्स, सम इनिशियल चैप्टर्स ऑफ द 12th. तो यहाँ से एक प्रॉपर एक सॉलिड एक पिक्चर बन गया है तुम्हारे माइंड में कि हाउ वी विल बी डूइंग दैट 4 week challenges. अलॉन्ग विद दिस मैंने जैसा बात किया था कि I am also going to do non-academic challenges just to build myself better. So what we are gonna do in these 4 weeks and what's non-academic challenge, let's see. Screen time less than 1 hour. जो लोग मोबाइल के वो डूम स्क्रॉलिंग में फंसे हुए हैं, इवन आई एम ऑल्सो गॉट स्टक, मेरे कितने बार 3 hours plus चले जाते हैं स्क्रीन टाइम. सो वी विल बी डूइंग स्क्रीन टाइम लेस देन 1 hour चैलेंज फॉर कंप्लीट 4 weeks. हमें ये ट्राई करना है that on each day we will have less than 1 hour screen time. जिनकी ऑनलाइन क्लासेस करने वाले हैं, जो उसी पे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, you can separate that out. तुम्हें वो देखना है कि तुम unnecessarily things पे कितने अपने स्क्रीन टाइम खर्च करते हो. नेक्स्ट इज मेडिटेशन ऑफ 15 minutes on each day. ये मैं करता हूँ यूजुअली, सो दैट इज नॉट गोइंग हार्ड फॉर मी. बट दोज हु आर नॉट डूइंग इट, बिलीव मी, तुम इतने डेज लगातार स्टडी करने वाले हो, तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी और प्रोडक्टिविटी डाउन नहीं करनी है. सो ट्राई टू डू इट. एंड नेक्स्ट इज दैट स्लीप साइकिल. मेरी स्लीप साइकिल अभी बहुत बिगड़ी पड़ी है. मैं अभी ऐसे सोता हूँ लाइक जब तक मेरी बॉडी
पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, आई वॉन्ट गो टू बेड। ये अच्छा भी था जब मैं कोडिंग वगैरह करता था, और उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट उस टाइम पे ये इट रियली वर्क्स फॉर मी, बट नाउ इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, बिकॉज वो माइंड में अभी एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज इन दीज 4 weeks our mind gonna trained hard and will gonna work hard. So this is needed for those who just come up to know these 4 weeks and just to know कि how to get rid of the backlogs. वो मैं बोलूँगा कि skip this part, because our next slide is that what's the first week targets, कि कौन कौन से मैं अपने साइड से जो लेकर आया हूँ कि क्या वो चैप्टर नेम होने वाले हैं, क्या वो चैप्टर्स होने वाले हैं जो हम फर्स्ट वीक में कवर अप करेंगे। जो कम्प्लीटली सोच रहे हैं कि डिपेंडेंट हैं वो ये फॉलो ऑन कर सकते हैं। बिलीव मी, 12th तुम्हारी स्टार्ट हो चुकी है, 11th के मैं चैप्टर्स लेके आया हूँ, तो ये ज़्यादा अफेक्ट भी नहीं करेंगे। सो यू कैन फॉलो ऑन दिस पाथ ऑल्सो। सो लेट्स सी फर्स्ट वीक टारगेट्स विच विल स्टार्ट फ्रॉम 22nd of May टू 28th of May। इसमें मैं PC में लेके आया हूँ सॉलिड स्टेट ऑफ क्लास 12, एटॉमिक स्ट्रक्चर of class 11th, and mole concept and concentration terms. So we will be covering 2 hours, 2 chapters of PC of 11th class and 1 of 12th class, and next is IOC and OC. We will be covering whole IOC, that is periodic table, basic inorganic nomenclature, chemical bonding, and complete GOC. Next is maths and physics. We will be doing logarithm and standard functions, trigonometry, quadratic equation, rational and irrational inequality, and from physics we will have vectors of physics, calculus of physics. Now let's talk about कि मैं इतना चैप्टर्स रख तो दिया हूँ, बट व्हाट्स द बेस। मैं अपने रिसोर्स बताता हूँ कि मैं कहाँ से करने वाला हूँ, उसके हिसाब से ये सारे रखे गए हैं। सॉलिड स्टेट यू कैन सर्च AKK सर, वन शॉट आता है, वन शॉट होगा सर का IIT स्कूल पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्रॉम बीस्ट केमिस्ट बाय मोहित रियान सर, तुम उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक सर ने कवर करवाया हुआ। दैट इज बेस्ट फॉर JEE मेंस लेवल, इवन फॉर JEE एडवांस, बट अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे जो 11th के चैप्टर्स हम कवर करें उसमें एट अ डिसेंट लेवल, और बियॉन्ड JEE मेंस लेवल। अभी JEE एडवांस लेवल पे कवर नहीं हो पाएगा, बिकॉज थ्योरी में बहुत डीप डाउन जाना पड़ता है JEE एडवांस के लिए, आई नो। सो अभी जितने भी 11th के चैप्टर्स होंगे वी विल बी कवरिंग टिल JEE मेंस लेवल एटलीस्ट। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक वहां तक देख सकते हो, और उसके आगे तुम ट्राई कर सकते हो कि यू कैन गो टू द JEE नेक्सस, और वहाँ से वन शॉट सर के होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यू वाले वन शॉट जो 11th क्लास के लिए अपलोडेड है, उसमें यू कैन फॉलो द रेस्ट पार्ट। आई थिंक उसमें तुम्हारा एक श्रोडिंगर्स मॉडल बचता है और एक और कुछ पार्ट बचते हैं, आई थिंक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद 2 आई थिंक थ्योरी बचती है, वो तुम पढ़ सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट एंड कंसेंट्रेशन टर्म्स मैं कंप्लीटली JEE नेक्सस की प्लेलिस्ट से फॉलो करने वाला हूँ, 11th की वन शॉट अपलोडेड है। मोल कॉन्सेप्ट का उसमें 2 पार्ट है, आई विल बी डूइंग दैट। IOC और OC के बारे में बात कर लेते हैं। सो पीरियोडिक टेबल, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एंड केमिकल बॉन्डिंग। होल IOC आई एम डूइंग फ्रॉम कंपटीशन चैनल बाय मोहित त्यागी सर, उसमें आलोक सर पढ़ा रहे हैं। बिलीव मी, पीरियोडिक टेबल का बात करूँ तो आई थिंक 6 लेक्चर्स होंगे। लेक्चर्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं एक्चुअली कंपटीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो तुम वहाँ से वो प्लेलिस्ट देख सकते हो, पीरियोडिक टेबल इवन फॉर बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एंड केमिकल बॉन्डिंग। उसमें सर ने बहुत डीप डाउन जाके बात की है। सो यू कैन कवर होल IOC फ्रॉम आलोक सर ऑफ मोहित त्यागी चैनल। और GOC के बारे में बात करें तो अगेन बीस्ट केमिस्ट बाय मोहित रियान सर, उसमें एक कंप्लीट GOC की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई विल बी डूइंग फ्रॉम दैट चैनल। मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स में बात करूँ तो कंप्लीटली मैथ्स जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं आई विल बी डूइंग फ्रॉम अरविंद कालिया सर ऑफ JEE नेक्सस। यू कैन सर्च दीज टॉपिक्स फ्रॉम दैट चैनल, और इजीली तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट क्या, पूरे वन शॉट्स इसके अपलोडेड हैं, लोगैरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन रैशनल एंड इरेशनल इनइक्वालिटी आई विल बी कवरिंग फ्रॉम LNJE। LNJE पे एक्चुअली LNJE पे भी नहीं, you can search on YouTube that rational and irrational inequality by LNJE. You can check शायद 3 hours की वीडियो आई थिंक अपलोडेड है, वो मैं करने वाला हूँ। नेक्स्ट इज आवर फिजिक्स। फिजिक्स कैसे करने वाला हूँ वो भी बताता हूँ।
फिजिक्स को तुम एक सर्च करना, इलाइट आई थिंक, बीजेई इलाइट, या वेदांतु जेई पे अपलोडेड है, वेदांतु जेई पे अपलोडेड है एक पूरी आई थिंक करिकुलम में उन्होंने पढ़ाया था, बीजेई इलाइट करके 11th क्लास की बाय विनय सूद सर। उनकी एक कंप्लीटली डिटेल्ड वन शॉट है, वो एक्चुअली लेक्चर्स में पढ़ाया था बट उसका एक तुम्हें कंप्लीटली वन शॉट मिल जाएगा, जिसमें तुम वेक्टर्स ऑफ फिजिक्स और कैलकुलस ऑफ फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हो। वेक्टर्स आई थिंक सबने पढ़ा होगा, सो आई वॉन्ट रेकमेंड कि तुम दोबारा वेक्टर्स देखो। जिसने नहीं पढ़ा है, ट्राई टू वर्क हार्ड, बिकॉज मैं इसमें वेक्टर्स ऐसे रिवीजन बेसिस पे रखा हूँ। कैलकुलस पूरा उनका देख सकते हो, आई थिंक 8 आवर्स की, लेट मी सी, 8 आवर्स 40 मिनट की उसमें वन शॉट है, सो यू कैन कवर डैट। वेक्टर का भी मैं बता दूँ 7 आवर 15 मिनट्स की वन शॉट वेक्टर का, सो आई वॉन्ट रेकमेंड टू वॉच दैट वीडियो। आई थिंक तुम वेक्टर का किसी और चैनल पे भी देख सकते हो जिसकी एक शॉर्ट वीडियो है, या फिर उन्हीं की एक शॉर्ट वीडियोस भी आती है वेक्टर्स की, जो आई थिंक 3 आवर्स में कंप्लीट करते हैं वो। बट ट्राई टू डू कैलकुलस फ्रॉम हिम, बिकॉज उन्होंने बहुत डीप डाइव जाके बताया है। एंड यू कैन ऑल्सो गेट प्रैक्टिस सीट्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वीडियो। तो वो वीडियो करने के बाद टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस यू कैन ऑल्सो फॉलो ऑन दैट। नाउ लेट्स सी कि हम लोग इस पूरे वीक में कैसे करने वाले हैं। वी विल हैव 6 डेज। मैंने 6 डेज इसलिए रखा है क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि लास्ट डे इज आवर रिवीजन डे, और उसमें जो भी बचता है तुम अपना कवर अप कर सकते हो। फर्स्ट 4 डेज वी विल बी डूइंग कंप्लीट आईओसी एटलीस्ट बिफोर बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज जीओसी करने के लिए तुम्हें बैक बॉन्डिंग की नेसेसिटी नहीं होती है। बैक बॉन्डिंग के बाद के जितने टॉपिक्स आते हैं वो जीओसी में नहीं लगते। तो बैक बॉन्डिंग के पहले तक वी विल बी ट्राइंग कि ये 4 डेज में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट 2 डेज वी विल बी डूइंग कंप्लीट जीओसी। और या इंपॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट वीक वी विल बी मोर फोकसिंग ऑन केमिस्ट्री ऑफ बोथ 11th एंड 12th। केमिस्ट्री अभी तो आई थिंक मोस्टली 11th का ही है, सो 11th पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, बिकॉज केमिस्ट्री का बहुत ब्रॉड सिलेबस है और वो सारे प्री रिक्विजिट्स लगते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री में। तो जितना जल्दी हमें ट्राई करना है कि सारे 11th की केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। 3 डेज में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिवाइड किया है कि 3 डेज में एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, और नेक्स्ट 3 डेज विल बी मोल कॉन्सेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म्स। सॉलिड स्टेट रेगुलर होने वाला है, मैंने ये टाइमिंग अपने हिसाब से लिखी है, यू कैन ऑल्सो चेंज इट। सॉलिड स्टेट 1.5 आवर रेगुलर वी विल बी कवरिंग 5:30 AM to 7 AM। इस टाइम पे हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट इज मैथ्स, वी विल बी ट्राइंग टू डू मैथ्स 2 आवर्स रेगुलर from 8 AM to 10 AM. Next physics 2 hour regular from 7 PM to 10 PM. ये 3 hour हो गया, but 1 hour is for dinner I think सबके लिए। So yeah, at the end that's all for this video. I tried to cover every damn thing which we are gonna do in these 4 weeks. Believe me, जैसा कि तुम लोग को पता है इस चैलेंज को मैं भी करने वाला। I try to make videos along with this challenge. जितने सारे चैलेंजेस हैं उन पे वीडियोस आएंगी, एंड ट्राई करना कि वो पोस्ट देखते जाओ। जो कम्युनिटी पोस्ट होता है मैं उस पर हर डे की अपडेट करने वाला हूँ, उस पर हर दिन मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे वो चैलेंज कंप्लीट किया। और वीडियोस भी आएंगी जो कि चैलेंजेस हैं, जैसे 500 क्वेश्चन चैलेंज हो गया, 18 आवर्स चैलेंज हो गया, 24 आवर्स चैलेंज हो गया, ये सारे पे वीडियोस आएंगी ताकि तुम्हें पता लगे, और यू कैन ऑल्सो गेट मोटिवेशन फ्रॉम इट। अगर तुम लोग को मुझे मोटिवेट करना है तो ट्राई टू ड्रॉप डाउन अ कमेंट ऑन ईच डे। इस वीडियो पे आना और नीचे कमेंट करना कि इस डे मैंने ये किया। उसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो बार बार स्क्रॉल करके चेक कर रहे हो, या फिर एडिट भी कर सकते हो, बट ट्राई करना कि वो छोटे में डे लिख के वो पोस्ट कर दो, और एडिट में वो फिर रीड मोड पे दबा के पूरी कमेंट रीड करनी पड़ेगी। तो ट्राई करना कि वो हर दिन आके एक अपडेट डालो, ये डे 16 मैंने ये कंप्लीट किया, डे 22 मैंने ये कंप्लीट किया, बिकॉज मैं भी अपने सारे डेज के बारे में पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में बता रहा हूँ कि कैसे मैं कर रहा हूँ। और इवन ऑन चैलेंज वीडियोस आई विल ऑल्सो बी कवरिंग होल माई डे, मैं ये कैसे चैलेंज कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यार बस यही था। और जो ये वीडियो लेट से देखेंगे, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि इट डजेंट मैटर व्हेन यू स्टार्ट, द थिंग विच मैटर्स द मोस्ट इज दैट व्हेन यू आर गोना कंप्लीट इट। सो ट्राई टू मेक योर चैलेंज, और ट्राई करो कि वो सारे जितने भी चैलेंज मैंने बताए उसमें केवल डेटा एडिट करो, बिकॉज आई नो ये चैनल नया है तो इस वीडियो की इतनी रीच नहीं जाएगी कि अभी सारे लोगों के पास पहुँचे, बट जब भी तुम्हारे पास पहुँचे ट्राई टू एडिट जस्ट द डेट्स, और ये चैलेंज को फॉलो करो।
बिकॉज इवन इफ यू आर स्टार्टिंग लेट ना, बिलीव मी कि अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इतने बार फेल हो जाएंगे कि वो तुम्हारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं. सो ट्राई, जस्ट तुम्हें ये करना है कि जब भी तुम्हें स्टार्ट करो उस टाइम तुम ये पूरी फॉलो अप करो और कंप्लीट करो ये चैलेंज. एंड या सो जो वो वीडियोस देखते थे कि इज इट स्टिल पॉसिबल, आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग. सो लेट्स नॉट वॉच दैट वीडियोस. Is it still possible to complete whole JEE syllabus? Is it still possible to crack IIT from now onwards? Let's create an example for those people who will search on YouTube next year. The choice is yours. Just, I already told you, just we need is that persistence, determination and discipline. And with these three, we are gonna conquer this challenge. And believe me, we don't need to be being talented or being genius. Just we need to have persistence, determination and discipline. Radhe Radhe.